بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امبر 8ویں کلاس کی ہونہار طالبہ تھی۔ کم گوئی اور معصومیت اس کی پہچان تھی۔ کبائی جو دوسری جماعت کا طالب علم تھا، بس وہی اس کی دنیا تھی۔ والد دبئی سے اتنے پیسے بیچتا تھا کہ امبر کی والدہ کو گھر چلانے میں کوئی دقت نہ آتی۔ محلے کی خواتین کام کاج سے فارغ ہو کر ان کے پاس آ جاتے۔ بچے اسکول جاتے تو اکیلے میں اس کا بھی وقت اچھا گزر جاتا۔ امبر اسکول سے آتی ہی کچن میں والدہ کا ہاتھ بٹاتی اور پھر بھائی کے ساتھ مگن ہو جاتی۔ امبر کی والدہ حسب معمول اپنی سہیلیوں کے گھر ملنے کے لیے چلی جاتی اور پھر کب شام ہو جاتی معلوم ہی نہ ہوتا۔ واپس آ کر بچوں کو کھانا کھلا کر فوری انہیں ان کی کمرے میں بھیجنا اس کی شاید عادت تھی، اور بچے بھی بلا چون چران حکم کے تعمیل کرتے۔ وہ ٹیلی ویژن لگا کر من پسند ڈراموں میں مگن ہو جاتی۔ یوں ہی زندگی کا یہ سلسلہ بھی گھڑی کی سوئی کی طرح مقرر دائرہ میں گھومتا رہتا۔ لیکن سال میں 10 دن ایسے بھی آتے جب امبر کی ابو چھٹیوں پر آتی۔ گھر میں محلے کی خواتین کا آنا تو کم ہو جاتا، مگر امبر اور اس کی بھائی کی دنیا میں جیسی بہار آ جاتی۔ مل کر کھانا کھانا، گھومنا پھرنا اور مستیاں کرنا اس قدر ان کی زندگیوں میں مسرتیں بکھیرتا کہ پورے سال کی تنہائیاں بھول جاتے۔ 8ویں جماعت کے بعد امبر کا داخلہ گھر سے تھوڑا دور ایک سکول میں ہو گیا۔ آنے جانے کے لیے وین لگوا لی۔ سکول میں سب دوست نئے تھے۔ چند دنوں کے بعد وہ بھی اس ماحول میں گل مل گئی۔ سب اچھا لگنے لگا۔ نئے سکول میں اسے 15 دن ہو چکے تھے۔ وہ سکول کے ہر جگہ سے واقف تھی۔ بریک میں دوستوں کے ساتھ کھیل کود تو کرتی، مگر عالیہ کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا اسے اچھا لگتا تھا۔ عالیہ دل کی بہت اچھی مگر تنہائی پسند لڑکی تھی۔ ایک دن امبر اپنی دوست کے لیے کچھ خاص لنچ لے کر آئی، مگر بریک میں عالیہ اسے کہیں نظر نہ آئی۔ وہ اسے تلاش کرتے کرتے سکول کے پچھلے حصے کی جانب نکل آئی۔ اسے کہیں نہ پا کر وہ مایوس لوٹ رہی تھی کہ اچانک ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے سے گفتگو سنائی دی۔ اس نے توجہ دی تو اسے معلوم ہوا عالیہ باتیں کر رہی ہے۔ جب اس نے اندر دیکھا تو آواز سے افتہ ہو گئی۔ عالیہ ایک ہاتھ سے موبائل فون کان کو لگائے دیوار کی طرف منہ کر کے عجیب و غریب آوازیں نکال رہی تھی۔ امبر کے لیے یہ منظر انتہائی عجیب تھا۔ وہ اس کو آواز دینا چاہتی تھی، مگر اس کے حلق سے آواز نے جیسے ناطہ ہی توڑ لیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی جانب بڑھنے لگی، مگر عالیہ آنکھیں بند کیے نہ جانے کس دنیا میں مگن تھی کہ امبر کی جھنجھوڑنے کے باوجود بھی اس کی آوازوں میں تبدیلی نہ آئی۔ اور پھر اچانک وہ مڑی اور امبر سے لپٹ گئی۔ امبر کے لیے یہ سب نیا تھا۔ اس کو عالیہ کے لپٹنے کی وجہ تو شاید معلوم نہ تھی، مگر وہ اس کی حالت دیکھ کر پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد حواس بحال ہوئے تو دونوں نے اپنی یونیفارم درست کیے اور بغیر ایک دوسرے سے بات کیے تیز تیز قدم اٹھائے گراؤنڈ کی جانب بڑھ گئے۔ بریک ختم ہو چکی تھی۔ تمام لڑکیاں اپنی اپنی کلاس میں جا چکی تھی۔ وہ دونوں سہمی کلاس میں داخل ہوئے۔ ٹیچر بورڈ پر میتھ کا سوال حل کروا رہی تھی۔ وہ دونوں دبے پاؤں اپنے بینچ پر بیٹھ گئی۔ ٹیچر کو تو ان کے آنے کی خبر نہ ہوئی، مگر امبر گھبرائی اور ڈری ہوئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پوری کلاس اسے دیکھ کر منہ چڑھا رہی ہے۔ اس کی نظریں تو اس بورڈ کی جانب تھی جس پر ٹیچر سوال حل کر رہی تھی، مگر اس کی سوچ باور میں پسی اس گیلی لکڑی کی مانند تھی جو پانی کے اس دائرے سے باہر نہیں نکل پاتی، اور باور بھی ایسا جو دور تیرتی چیزوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے کر تہ خاک تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی موجود نہ تھی۔ اسی سوچ میں اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ جانے کب چھٹی کی گھنٹی بجی۔ عالیہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کلاس ختم ہونے کا بتایا۔ وہ اٹھی اور خاموشی سے عالیہ کے پیچھے چل دی۔ وہ دونوں وین میں سوار ہوئے۔ امبر نے وین میں داخل ہوتی ہی ٹھیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ عالیہ نے اس کا ہاتھ تھاما تو اسے خبر ہوئی کہ امبر کو تو شدید بخار ہے۔ جو ہی امبر کا گھر آیا، عالیہ بھی ساتھ اتر گئی۔ امبر کو اس کے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس کی والدہ کو بتایا کہ اسے بخار ہو گیا تھا، میں اس کی دوست ہوں، سوچا اسے گھر چھوڑ دوں۔ امبر کی والدہ چونکہ ایک ملنسار خاتون تھی، اس کا شکریہ ادا کیا اور امبر کو بخار کی دوائی پلا کر سلا دیا۔ عالیہ نے بتایا کہ آنٹی، میرا گھر آپ کے قریب ہی ہے، میں چلی جاؤں گی، مگر امبر کی امی نے اس کے ساتھ جانا مناسب سمجھا۔ گھر پہنچے تو عالیہ نے اپنی امی کو امبر کی والدہ کا تعارف کروایا۔
फिर मिलेंगे का कह कर अंबर की वालिदा घर वापस आ गई। अंबर का बुखार तो टूट चुका था मगर वो गहरी नींद सो चुकी थी। शाम को अंबर उठी तो उसकी तबीयत तो काफ़ी बेहतर थी मगर वो अभी भी डरी हुई थी। उसकी अम्मी ने कहा, आलिया कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें घर तक छोड़ने आई, वो हमारे करीब ही रहते हैं। तुम उठकर मुंह हाथ धो लो और कपड़े तब्दील कर लो। अम्मी की बात सुनते ही वो उठी और कपड़े तब्दील करने चली गई। अब उसका दिमाग बोझल नहीं था, वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आज पहली दफ़ा वो खुद को शीशे में मुसलसल घूर रही थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे दुनिया की तमाम राहतें उमड़कर उसके तन और मन में समा गई है। पहली दफ़ा उसे अपने खुद-ख़ाल पर प्यार आ रहा था। जूं-जूं शावर का पानी उसके जिस्म पर पड़ रहा था, वो यूँ महसूस कर रही थी जैसे सहरा की तपती रेत पर रिमझिम हो रही हो। उसका दिल चाह रहा था कि काश अब आलिया मेरे साथ होती। उसकी कमी उसे शिद्दत से महसूस हो रही थी। शावर लेने के बाद कपड़े तब्दील करते करते उसकी नज़रें मुसलसल शीशे पर ही जमी थी। वो खुद में मगन हो गई। अचानक अम्मी की आवाज़ आई कि बाहर आओ, तुमसे कोई मिलने आया है। उसने आखिरी नज़र शीशे पर डाली और ड्राइंग रूम में आ गई। वो ये देखकर हैरान रह गई कि जो ख्वाहिश वो नहाते हुए कर रही थी वो उतनी जल्द पूरी हो चुकी थी। आलिया और उसकी अम्मी अंबर की वालिदा के साथ खुशगप्पियों में महोते। अंबर ने सलाम किया और अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद अंबर की अम्मी ने कहा, बेटा आपकी आंटी गुजरेला लाई है, किचन में जाकर प्लेटों में डालकर चाय के साथ ले आओ और अपनी बहन को भी साथ ले जाओ। चाय का सुनते ही अली, जो अब तक कार्टून देखने में मसरूफ़ था, दौड़ता हुआ किचन में अंबर के पास आ गया। अंबर और आलिया की दोस्ती अब इस कदर बढ़ गई थी कि इकट्ठे स्कूल जाना, मिल के वापस आना, होमवर्क के लिए रात देर तक इकट्ठे रहना मामूल था। एक दिन जब वो स्कूल से वापस आई तो मालूम हुआ कि आलिया की अम्मी किसी रिश्तेदार की फौतगी पर जा रही है और अंबर की अम्मी भी उनके साथ जाएंगी। हफ्ता का दिन था और वो जाते हुए अली को भी साथ ले गई। फैसला ये हुआ कि अंबर घर में अकेली होगी तो वो आलिया के साथ उनके घर रह लेगी। आलिया और अंबर ने कुछ देर टीवी देखा, फिर कंप्यूटर पर फैमिली की तस्वीर देखने लगे। अंबर को कंप्यूटर का कोई नॉलेज न था क्योंकि उसके पास कंप्यूटर था ही नहीं। आलिया ने उसे इंटरनेट पर कुछ मालूमात दिए। वो बड़े इश्तियाक से मुख्तलिफ मालूमात हासिल करने लगी। जब आलिया ने देखा कि अंबर मुकम्मल तौर पर मसरूफ़ हो चुकी है तो उठकर दूसरे कमरे में चली गई। अपना मोबाइल जो उसने छुपाया हुआ था निकाला और एक नंबर डायल किया। अंबर भी चुपके से उसके पीछे गई और चुप कर देखने लगी। रिंग बजते ही उसने कट कर दिया। 1 मिनट बाद कॉल आई तो आलिया ने सलाम के बजाय नाराज़ी जाहिर करते हुए कहा, नासिर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम्हें पता है आज 10 दिन हो गए, मैं हर रोज़ कॉल करती हूँ, जब भी कॉल करूँ तो तुम्हारा नंबर बंद जा रहा होता है। तुम्हें मालूम है मैं कितनी परेशान थी। थोड़ी तवक्कुफ़ के बाद आलिया का लहजा अचानक तब्दील हो गया। यूँ महसूस हुआ जैसे वो नासिर का जवाब सुनकर मुतमईन थी। एक दूसरे का हाल अहवाल पूछने के बाद आलिया ने कहा कि पहले तुम मेरे नंबर पर लोड करवाओ, बाद में बात करते हैं। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। आलिया कमरे से निकल आई और अंबर के पास आ गई। अंबर ने बताया कि मैंने बहुत से मेहंदी के डिज़ाइन देखे हैं। आलिया ने उसे कहा कि मैं तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। ये कहकर उसने पोर्न साइट्स खोलना शुरू कर दी। काफ़ी देर देखने के बाद अंबर ने कहा कि सिर्फ तस्वीरें ही है तो आलिया ने पोर्न क्लिप निकाल कर दिखाना शुरू कर दिए। वो काफ़ी देर तक देखते रहे और एक दूसरे से मस्तियाँ करते रहे। अचानक आलिया की फ़ोन की घंटी बजी। उसने अंबर से कहा कि मेरे दोस्त की कॉल आई है, मैं सुन लूँ। आलिया बात करते करते अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब अंबर उसके कमरे में दाखिल हुई तो आलिया बिल्कुल उसी कैफियत में थी जिसमें अंबर ने उसे स्कूल में देखा था, मगर इस दफ़ा वो अपने बेड पर लेटी अजीब गरीब आवाज़ें निकालते हुए माही बेआब की मानंद तड़प रही थी। अंबर खुद अपने जिस्म में भी टूट-फूट से महसूस कर रही थी, इसलिए वो भी आलिया के साथ लिपट गई। मोबाइल का लाउड स्पीकर ऑन हो गया। वो दोनों दुनिया व माफिया से बेखबर हो गई। इस दौरान जाने कब नासिर का फ़ोन बंद हुआ, दोनों को खबर ही न हुई। चंद मिनट तक गनूदगी की कैफियत तारी रहने के बाद आलिया उठी और अंबर को भी उठा दिया। दोनों किचन में आ गई। आलिया ने चाय बनाई और दोनों अपना अपना चाय का मग तामे ड्राइंग रूम में आ गए। चाय की चुस्की लेते हुए अंबर ने पूछा,
यार ये नासिर कौन है? आलिया ने बताया, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। स्कूल में उस दिन मैं नासिर के साथ ही बात कर रही थी। अंबर बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी। आलिया ने बताया कि मुझे मोबाइल फ़ोन भी नासिर ने लेकर दिया है और जब बैलेंस ख़त्म हो जाए तो खुद ही लोड करवा देता है। मेरे इससे दोस्ती उस वक्त हुई जब मैं अपनी कज़न के साथ उसकी बड़ी बहन से 8वीं क्लास के इम्तिहान की तैयारी करने गई थी। हम रोज़ उनके घर चुपके मिलते और मज़े करते, मगर एक बात कहूँ, जो मज़ा नासिर के साथ मिलने का आता है वो टेलीफोन मुलाकात में नहीं। अभी वो बात कर रही थी कि नासिर की कॉल आई। उसने परेशान होकर पूछा कि आज आपके साथ कोई और भी था? आलिया ने बताया कि मेरी दोस्त अंबर है और आपसे बात भी करना चाहती है। ये कहकर उसने फ़ोन अंबर के कान को लगा दिया। अंबर ने धीमी सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। फिर एक दूसरे का तारुफ गपशप में तब्दील हो गया। जब 5 मिनट तक उनकी बात चलती रही तो आलिया ने कहा, उसे कहो बाद में बात होगी, और हाँ, उसे कहो 100 रुपये का बैलेंस करवा देना। जब अंबर ने कहा तो नासिर ने कहा, तुम्हारे नंबर पर या आलिया के नंबर पर? तो अंबर ने बताया कि मेरे पास तो मोबाइल ही नहीं। ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। रात के 9 बज चुके थे। दरवाज़े पर दस्तक हुई। आलिया ने दरवाज़ा खोला तो सामने आलिया की अम्मी थी। वो अंदर आई, हाथ में कुछ सामान था। आलिया को पकड़ाया और अंबर को उसके घर छोड़ने चली गई। फिर को स्कूल में ब्रेक टाइम आलिया ने अंबर को एक पैकेट थमाते हुए कहा कि कल नासिर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भिजवाया है, मगर इसे घर जाकर खोलना। रात को जब अंबर अपने कमरे में गई और गिफ्ट खोल कर देखा तो उसमें मोबाइल था। उसने ऑन किया तो नासिर का मैसेज आया हुआ था, कल मैं और आलिया ने पिज़्ज़ा खाने जाना है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में पहली दफ़ा अंबर स्कूल की बजाय डेट पर गई। उसे अजीब तो लग रहा था मगर अच्छा भी महसूस हो रहा था। उसके बाद नासिर और अंबर फ़ोन पर रात को बात करते और दिन को अंबर और आलिया रात को होने वाली बातें डिस्कस करते। एक दिन अंबर और नासिर मिलने का प्रोग्राम बनाया। आलिया 3 दिन से गाँव गई हुई थी। वैन वाले को पहले ही छुट्टी का बता चुकी थी। उसने नासिर को मैसेज किया कि मुझे 100 रुपये का लोड करवा देना, और उसके बाद जब उसकी अम्मी अली को स्कूल छोड़कर वापस आई तो अंबर ने बैग उठाया और स्कूल के लिए निकल पड़ी। जो ही बड़ी सड़क पहुंची तो नासिर पहले ही वहां गाड़ी में मौजूद था। गाड़ी रवाना हुई। 20 मिनट के ड्राइव के बाद गाड़ी एक घर के सामने रुकी। नासिर गाड़ी से उतरा और बड़ा दरवाज़ा खोलकर गाड़ी अंदर खड़ी की। दरवाज़ा बंद किया और दोनों घर में दाखिल हो गए। बज़ाहिर यूँ लग रहा था कि घर कई रोज़ से बंद था। नासिर ने बताया कि ये घर मेरे अंकल का है, वो आजकल फैमिली के साथ दुबई गए हैं। नासिर ने अंबर से कहा कि आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हें खुश करूँ और जो कुछ हम टेलीफोन पर करते रहे वो अब आमने सामने करें। बस फिर दोनों मदहोश हो गए। इस तरह मुलाकातों के सिलसिले जारी रहे। 1 महीने की छुट्टियों पर गई। आलिया जब वापस लौटी तो अंबर से मिलने उसके घर आई। अंबर की परेशानी उससे देखी न गई। आलिया की इसरार पर उसने तमाम वाक़यात उसे बताई और ये भी बताया कि अब 7 दिन से उसका नंबर भी बंद जा रहा है और इस मर्तबा मुझे वो भी नहीं आई। आलिया सारी बात समझ गई, उसे तसल्ली दी और घर चली गई। शाम को आलिया अपनी कज़िन के साथ नासिर के घर गई तो वहाँ ये जानकर अक्की बक्की रह गई कि नासिर को तो दुबई गए आज 7 दिन हो गए हैं। ये सुनना था कि आलिया की पाँवों के नीचे से जैसी ज़मीन सरक गई। वो सोच रही थी कि अगर वो मेरे सामने हो तो मैं उसको गोली मार दूं। कमीना मेरे दोस्त को मां बनाकर उसे मुश्किल में डालकर खुद दुबई भाग गया, मगर वो कर भी क्या सकती थी। अगले दिन जब उसने अंबर को बताया तो वो भी हवा से बाख्ता हो गई। शाम को आलिया चाय पी रही थी कि उसकी अम्मी ने तकरीबन चीखते हुई आवाज़ दी, जल्दी आओ, अंबर ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही आलिया के तोते उड़ गए। वो उठना चाहती थी मगर गश खाकर गिर गई और बेहोश हो गई। अगले दिन उसे होश आया तो अंबर मिट्टी तले दफन हो चुकी थी। उसकी माँ बाप गम से